Namaste students. In previous lecture we discuss about crop protection management and today we discuss about animal husbandry. Firstly, I tell the meaning of animal husbandry. It is the branch of agriculture which deals with the feeding, breeding, shelter and health care of animal livestock is known as animal husbandry and animal farming. Again I tell you about animal husbandry. It is the branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health care and breeding of animal livestock is known as animal husbandry and animal farming. It includes, ये किस किस को include करती है? It includes goat, sheep, cattle and poultry. As you know that population day by day increasing and standard of living organism also increasing. So demand for meat, milk and egg also is going up day by day. Is it clear beta? So we need to improve the प्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक. तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें क्योंकि डे बाय डे इनके प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है. इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम एनिमल लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें. इज़ इट क्लियर बेटा? एनिमल हस्बेंड्री it is branch of agriculture which deals with feeding, shelter, health and breeding of animal livestock is called animal husbandry or animal farming or animal farming. It is the branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health and breeding of animal livestock is known as animal husbandry and animal farming. It includes goat, sheep, poultry and cattle. As you know that population day by day increasing and the living standard of living organism also increasing and demand for milk, chicken and egg also is going up due to the increasing the population. Is it clear beta? So in animal husbandry we discuss about four components. First one is cattle farming, second one is poultry farming, third one is fish production and next one is beekeeping. And in this lecture we discuss about cattle farming. Again I tell you about animal husbandry has four components. First one is cattle farming, second one is poultry farming, third one is fish production, fourth one is beekeeping. And in this video we discuss about cattle farming.
cattle farming. Next one, cattle farming, it is done for two purpose. First one is for the milk production and for the labor work. हम कैटल फार्मिंग दो पर्पस के लिए करते हैं, फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज फॉर लेबर वर्क. एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनिमल्स आर टू टाइप, मिल्क एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स. मिल्क एनिमल्स, दीज इंक्लूड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स, जो फीमेल एनिमल्स मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, दोज एनिमल्स आर नोन एज मिल्क एनिमल्स एंड डेयरी एनिमल्स. एंड नेक्स्ट वन इज ड्रॉट एनिमल्स. ड्रॉट एनिमल्स, दोज एनिमल्स डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क बट दैट कैन बी यूज्ड फॉर लेबर वर्क लाइक प्लाविंग, टिलिंग, कार्टिंग, लाइक इरीगेशन. इन एग्रीकल्चर वर्क्स के लिए जिन एनिमल्स को यूज़ करते हैं, दैट एनिमल्स आर नोन एज ड्रॉट एनिमल्स. Is it clear beta? So cattle farming, it can be done for two purposes. First one is for milk production. Second one is for labor work. For labor work. Is it clear beta? Now we discuss milk animals. This also known as dairy animals, D-I-A-R-Y, dairy animals, and these includes milk producing females, and next one is draught animals. Those animals which do not produce milk but can be used for agriculture work, such as tilling. Tilling means ploughing, irrigation, etc. Is it clear beta? Next I tell you about some Indian species of cattle like cows, Bos indicus, and buffaloes, that is Bos bubalis. Is it clear? Some Indian species of cattle. First one is cow को हम बोलते हैं Bos indicus, इसका साइंटिफिक नेम है, हम फॉलो करेंगे. नेक्स्ट buffaloes, that is Bos bubalis. Is it clear beta? These are the species of cattle in India. Is it clear beta? Next I tell you about
द मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी एंड लेंथ ऑफ लैक्टेशन पीरियड। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी, कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं, वैसे करेक्टर आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, हेरिडिटी एंड लेंथ ऑफ लैक्टेशन पीरियड। नाउ वी डिस्कस अबाउट लैक्टेशन पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन पीरियड? लैक्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन का टाइम होता है, दैट इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ। इज इट क्लियर बेटा? सो मिल्क प्रोडक्शन depends upon two things. First one is heredity and second one is length of lactation period. लैक्टेशन पीरियड डिस्कस करते हैं अब हम। लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड is the duration of milk production after the birth of calf. Is known as lactation period. Now I discuss about how we improve the cattle variety. Cattle variety को कैसे improve कर सकते हैं? We improve the cattle variety with the help of cross breeding. And now question will come, which type of animals we do the cross breeding? किन दो animals को हम cross breeding कराएंगे? Firstly, I tell you about Indian breeds. Indian breeds कौन सी है? रेड सिंधी एंड साहिवाल. These two species या Indian breeds show excellent resistance of disease. It means they resist the disease. No chances any pathogen attack on the Indian breeds because they show the excellent resistance to disease. Is it clear beta? Show excellent resistant to diseases. And next one is foreign breeds, exotic breeds भी बोलते हैं हम, foreign breeds. Brown Swiss and Jersey and Brown Swiss. They have long lactation period. इनका lactation period ज़्यादा होता है. So both breeds are crossbreed to get the animals with both desired qualities. Is it clear बेटा? इन दोनों breeds की क्रॉस ब्रीडिंग करा के हम उस टाइप का एनिमल्स ले सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हों. Is it clear बेटा? In this way we improve the variety of cattle. So Jersey and Brown Swiss have long lactation period. So both are crossbreed. दोनों को हम क्रॉस ब्रीड कर देंगे. एंड टू गेट द एनिमल्स
ऑफ बोथ डिजायर्ड क्वालिटीज। क्रॉस ब्रीडिंग करा के हम जो ये दोनों डिजायर्ड क्वालिटीज हैं उस एनिमल के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? सो बोथ क्रॉस ब्रीड टू गेट गुड क्वालिटी एनिमल विद बोथ डिजायर्ड क्वालिटीज। नेक्स्ट वन we discuss management practices, farm management practices. Next one, farm management practices. It has 4 components. It has 4 components. Components means parts. 4 components. First one is grooming. Grooming means cleaning. First one is grooming. Grooming means cleaning. Second one is shelter. Third one is feeding. Feeding. And fourth one is health care. Is it clear beta? These 4 components for the farm management practices. First one, we discuss about grooming. What do you mean by grooming? The grooming means cleaning. The cattle should be cleaned regularly, and the cattle require brushing to remove the loose hair, to remove the dust, and to remove the external parasite. And brushing also increase the blood circulation of cattle, which is better for their health of animal. And after the brushing, we washing the cattle animals further to clean them. Is it clear beta? Grooming का मतलब होता है clean. The animal should be cleaned regularly. उन्हें डेली क्लीन करना चाहिए. एंड कैटल्स रिक्वायर ब्रशिंग. ब्रश करना चाहिए उनकी बॉडी पे टू रिमूव द डर्ट, टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, टू रिमूव लूज हेयर एंड टू रिमूव द एक्सटर्नल पैरासाइट. एंड ब्रशिंग increase the blood circulation which maintain the health of cattle animal. And after this, washing of the animals further to clean them. Clean animals give clean milk. जो हेल्दी एनिमल्स होंगे वही हमें क्लीन मिल्क की प्रोडक्शन करेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज शेल्टर. उनका शेल्टर कैसा होना चाहिए, उनका घर कैसा होना चाहिए. शेल्टर शुड बी ड्राई, क्लीन, वेल वेंटिलेटेड. क्लीन होना चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए. इज इट क्लियर बेटा? द शेल्टर शुड प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, सनलाइट. शेल्टर ऐसा होना चाहिए जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे रेन से, हीट से, कोल्ड से. इज इट क्लियर बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्लोर ऑफ कैटल शेड. जो फ्लोर है कैटल शेड का, दैट शुड बी स्लोपिंग, नीड टू बी स्लोपिंग बिकॉज इट बिकम ड्राई एंड टू फैसिलिटेट द क्लीनिंग. स्लोपिंग होना चाहिए क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिन पास आउट करते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद यूरिन पास आउट कर देते हैं और वहाँ पे यूरिन क्या हो जाएगी, लॉगिंग हो जाएगा यदि वो स्लोपिंग ना हो तो. यदि फ्लोर स्लोपिंग होगा तो यूरिन आगे की ओर पास आउट हो जाएगा, जिससे उसका जो फ्लोर है वो क्लीन रहेगा और ड्राई रहेगा. इज इट क्लियर बेटा? सो द फ्लोर ऑफ कैटल शेड should be या need to be sloping to
फैसिलिटेट द क्लीनिंग एंड टू बी ड्राई करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए। मैंने आपको बताया है कि जो एनिमल्स हैं रेगुलर इंटरवल के बाद यूरिन पास आउट करते रहते हैं। यदि वो फ्लोर स्लॉपिंग नहीं होगा तो यूरिन वहीं कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और यदि वो फ्लोर स्लॉपिंग होगा तो वो यूरिन पास आउट करेंगे तो वो आगे की ओर हो जाएगा, जिससे फ्लोर ड्राई रहेगा और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी क्लीन रहेंगी। इज इट क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट वन इज फीडिंग। फूड रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स। जो फूड रिक्वायरमेंट एनिमल्स की हैं दैट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस। देखो मेंटेनेंस, और सेकेंड वन इज मेंटेनेंस एंड सेकेंड वन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। अब मेंटेनेंस वर्ड से ही समझ आ रहा है। देखो फीडिंग 2 टाइप की होती है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस किस लिए चाहिए होती है? टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ एनिमल, एंड मेंटेनेंस विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव ए हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी लाइफ व्यतीत करे, इसलिए फूड की रिक्वायरमेंट उसको मेंटेनेंस करने के लिए चाहिए होती है। सेकेंड वन इज फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, milk production which is the type of food requirement which is provided to cattle during the lactation period। जो फूड लैक्टेशन पीरियड में प्रोवाइड किया जाता है वो किस लिए होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इज इट क्लियर बेटा? मैंने आपको बताया कि जो फूड की रिक्वायरमेंट है एनिमल्स की वो 2 टाइप्स की होती है। किस 2 टाइप की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है कि एनिमल की हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम मेंटेनेंस के लिए उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा किस पर्पस के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क दैट प्रोवाइड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। इज इट क्लियर बेटा? अब मैं आपको बताऊंगी फीड के 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स ऑफ फीड। 2 components of feed। Components of feed। First one is roughage। roughage में क्या है? Which is largely made up of fibers which are largely फाइबर्स, जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड वन इज कंसंट्रेट। कंसंट्रेट में विटामिन्स और प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं एंड लो फाइबर्स विच आर लो फाइबर्स but high amount of proteins, इसके अंदर प्रोटीन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? हमें कैटल्स को दोनों टाइप की फीड प्रोवाइड करनी चाहिए इन द बैलेंस्ड रेशो। इज इट क्लियर बेटा? एंड नेक्स्ट वन इज फीड अडेटिव, मतलब अदर मिनरल्स विटामिन्स प्रोवाइड करने से एक तो एनिमल की हेल्थ मेंटेन रहेगी, सेकेंड वन इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इज इट क्लियर बच्चे? Again, I repeat feeding. 2 components of feeds. First one is roughage, which is consist of large fibers. Next one is concentrate,
concentrate which are consist of low fiber, high amount of protein and other nutrients. प्रोटीन्स होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, और दोनों टाइप की फीड हमें एनिमल को प्रोवाइड करनी चाहिए इन द बैलेंस्ड प्रोपोर्शन. एंड अदर फूड फीड अडेप्टिव, जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट आल्सो प्रोवाइड in the animal feed, because these micronutrients improve the health of animal and increase the production of milk. जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और एनिमल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन इज हेल्थ केयर. द डिजीजेस ऑफ कैटल्स आर कॉज्ड बाय many viruses, bacteria, fungus. नेक्स्ट है हेल्थ केयर. एनिमल्स को बहुत सी डिजीजेज हो जाती हैं. दैट डिजीजेज कॉज्ड बाय द diseases caused by bacteria, viruses, fungus, एक्सेट्रा. इसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. इज इट क्लियर बेटा? दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट. और पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल जो इफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट, और इंटरनल पैरासाइट. इंटरनल पैरासाइट. External parasite are those parasite which attack on the skin, जो स्किन पे अटैक करते हैं, जो सरफेस पे अटैक करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल, आर दोज पैरासाइट दैट अटैक ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल एंड विच कॉज स्किन डिजीजेज, जिसकी वजह से स्किन डिजीजेज हो जाती हैं. एंड इंटरनल पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच एंटर इन द बॉडी ऑफ एनिमल, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, स्टमक पे इन्फेक्शन कर देते हैं. वॉर्म्स होते हैं, WORMS वॉर्म्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं स्टमक को, इंटेस्टाइन को. लीवर फ्लूक एक एनिमल है, प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है. लीवर फ्लूक दैट इफेक्ट ऑन आवर लीवर, वो हमारे लीवर पर इफेक्ट करते हैं. इज इट क्लियर बेटा? सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज डिजीजेज, इन डिजीजेज से बचाने के लिए हमें रेगुलरली एनिमल्स का चेकअप कराना चाहिए बाय वेटिनरी डॉक्टर्स. एंड वैक्सीनेशन आल्सो शुड बी टू द एनिमल्स, टू एवरी एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस. वैक्सीनेशन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन होना चाहिए और रेगुलर चेकअप होना चाहिए बाय वेटिनरी डॉक्टर्स. इन दिस वेज वी प्रिवेंट द diseases. Is it clear? Again I tell you about, first one is grooming. Grooming means cleaning. The cattle should be cleaned regularly and cattle require brushing to remove loose dust, loose hairs and to remove the external parasite, and washing of animals further to clean them, because clean animals only give clean milk. Is it clear? Second one is shelter. Shelter कैसा होना चाहिए जहाँ वो रहते हैं? Shelter should be dry, clean, well ventilated. Is it clear बेटा? Shelter should be नहीं. The shelter should protect the animals from rain, heat, cold, and the floor of cattle need to be sloping होना चाहिए
to be dry and to facilitate the cleaning. Is it clear beta? Next one we discuss about feeding. Food requirement of cattle, two types. First one is maintenance, to maintain the healthy life of animal. Second one is for the production of milk. And then feed has two component, roughage और concentrate. रफेज के अंदर फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, कंसनट्रेट के अंदर फाइबर कम होते हैं पर प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं. हमें दोनों टाइप की फीड प्रोवाइड करनी चाहिए एनिमल को प्रपोर्शन अमाउंट में, बैलेंस्ड अमाउंट में. नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी एनिमल्स की हेल्थ को इंक्रीज़ करते हैं और मिल्क की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं. क्लियर बेटा? फिर हम आते हैं हेल्थ केयर पे. हेल्थ केयर, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं पैथोजन की वजह से, और पैथोजन से बचाने के लिए हमें उन्हें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए बाय वेटरनरी डॉक्टर्स. और ये पैथोजन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट. इंटरनल पैरासाइट हैं जो दे एंटर इनसाइड द एनिमल, दैट आर नोन एज इंटरनल पैरासाइट. जैसे लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक लीवर पे इफेक्ट करता है. और एक्सटर्नल पैरासाइट दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल, सरफेस पे रहता है एंड दैट कोज स्किन डिजीजेस. इज इट क्लियर बेटा? थैंक्स फॉर वॉचिंग. I will discuss in next lecture poultry farming.